Hallelujah. Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful evening. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के अद्भुत शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for your goodness and for your mercies. आपके अनुग्रह और आपके दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, that your thoughts are always about us, Lord. और पिता, धन्यवाद आपके विचार हमारे लिए बने हुए हैं। Lord, we pray, O Father, that the word which I'm going to speak today, let it go into the spirit of people, O Master. पिता परमेश्वर, आज की शाम जो वचन में प्रचार करने जा रहा हूँ, वो लोगों की आत्माओं के अंदर जा सके। Let it bring a blessing in their life. और उनके जीवन में आशीष लेके आए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You know, recently I woke up at 3 o'clock in the morning. और आज सुबह 3 बजे जब मैं जागा, I thought I got up early. और मैं सोचा मैं बहुत जल्दी जाग गया। Then the Lord put that in my spirit, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आत्मा के अंदर एक बात को डाली that the Lord was waiting for me कि परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहे हैं to wake up कि मैं जागूं, so that He can have fellowship with me. जिससे कि उसका मेरे साथ एक संगति हो सके। I was filled with awe at the knowledge that Jesus wanted to have fellowship with me. और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और मैं उस ज्ञान से भर गया कि यीशु मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। So the thought is so wonderful that the Lord of heaven and earth wants to have fellowship with you. और वो ज्ञान अद्भुत की स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर मेरी प्रतीक्षा में है बातचीत करने के लिए। The presence of Lord was very real to me. और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बहुत ऐसे थी। And God brought me to His remembrance, to my remembrance, Psalm 113. Let us read from verses 3 to verses 12. और परमेश्वर ने मेरे अंदर में भजन संहिता 139 3 से 12 वचन को मेरे अंदर डाला, जहाँ इस तरीके से लिखता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। Hallelujah. हालेलुया। I'll read from the Amplified version. और एम्प्लीफाइड वर्जन से आप इसको पढ़ रहे हैं। You know my down sitting and my uprising. You understand my thoughts afar off. You sift and search out my path and my lying down, and you are acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue still unuttered, but behold, O Lord, you know it altogether. You have beset me and shut me in behind and before, and you have laid your hand upon me. Your knowledge is too wonderful for me. It is high above me, I cannot reach it. Where could I go from your spirit, Lord? Or where could I flee from your presence? If I ascend up into heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, the place of the dead, behold, you are there. If I take the wings of the morning or dwell in the uttermost part of the sea, even there shall your hand lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the night shall be the only light about me, even the darkness hides nothing from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. For you did form my inward part, you did knit me together in my mother's womb. Hallelujah. हालेलुया। Yes.
You know my down sitting and my uprising. और लिखता है यहाँ पर, तू मेरा उठना बैठना जानता है। You understand my thoughts afar off. मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। Yes, you sift and search out my path and my lying down, and you are acquainted with all my ways. मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। He has surrounded me with His presence. और उन्हें अपने उपस्थिति से मुझे घेर रखा है। And not only that, और सिर्फ उतना ही नहीं, the thoughts of the Lord are always about me. और परमेश्वर का जो विचार है वो मेरे प्रति हमेशा है। Let us read from Psalm 139, 17 and 18. और हम भजन 139 के 17 और 18वें पद को भी पढ़ेंगे। How precious and weighty also are your thoughts towards me, O God. How vast is the sum of them. If I count them, they would be more in number than the sand. When I am awoke, could I count to the end, I would still be with you. मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के गिनकों से भी अधिक ठहरते। क्या मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। Yes, how precious are God's thoughts to me. और परमेश्वर का विचार मेरे प्रति कितने बहुमूल्य हैं। When God put that in my spirit, I started weeping to know that God, before God, He is always thinking about me, and I am so precious in His sight. और जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर होता तो मैं हर समय रोता हूँ और इस बात पर मैं विचार करने लगता हूँ कि परमेश्वर का विचार मेरे प्रति कितने बहुमूल्य हैं। His thoughts are about me always. और उसके विचार मेरे प्रति सदैव हमेशा हैं। I am just a dust. और मैं तो एक डस्ट के समान हूँ, धूलि के समान हूँ। I am just a speck in His sight. और मैं उसके दृष्टि में कुछ भी नहीं। How He has shown His favor on me. और कैसे उसने उस अनुग्रह को मुझ पर बना रखा है। When I think of it, I am humbled in my spirit. और जब मैं उन बातों को सोचता हूँ तो अपने आत्मा में बहुत ही दीन हो जाता हूँ। And all the days of my life, I'll be faithful to Him because His goodness is always with me. और अपने जीवन के इन तमाम वर्षों में मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा क्योंकि उसकी करुणा और दया सदैव मेरे साथ बनी रही। Just to be in His presence. उसके विश्वास, उसके परिस्थिति में होना, उसकी उपस्थिति में होना। Let us look at Psalm 84. और आइए हम भजन संहिता 84 को निकालेंगे। Verses 10. Psalm 84 verses 10. भजन संहिता 84 उसका 10वां अध्याय हम निकालेंगे। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। For a day in your court is better than 1,000. Anywhere else, I would rather be a doorkeeper and stand at the threshold in the house of my God than to dwell at ease in the tents of the wicked. और यहाँ लिखता है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। Yes, it's better to dwell in the house of the Lord, to be like a doorkeeper. और परमेश्वर के भवन के डेवढ़ी पर एक डोरकीपर या मतलब उसके गेट के पास या उसके दरवाजे के पास रखवाले के रूप में खड़ा रहना उत्तम और बेहतर बात है। Than to compromise with the world. और इस संसार से समझौता करने से I feel like Paul when he said in Philippians 3:8. और फिलिपियों 3:8 में पौलुस इस तरीके से कहता है, Yes, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, the surpassing worth and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord and progressively becoming more deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding
is more fully and clearly. For his sake, I have lost everything. I consider it all to be mere rubbish, in order that I may win Christ, the Anointed One. और 8 वर्ष 8th verse, yeah. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। Yes, Paul said, I count everything lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ. और मसीह यीशु की जो पहचान है उसकी उत्तमता के कारण सभी बातों को मैं बेकार व्यर्थ समझता हूँ। King David knew the value of the presence of God. और जो राजा दाऊद थे वो परमेश्वर की उपस्थिति की महत्वता को समझते थे। Though he was very rich and wealthy, यद्यपि वो बहुत धनी और धनी थे, his riches and his wealth did not have a hold over his life. लेकिन उसके जीवन में उसके धन संपत्ति का उस पर कोई पकड़ नहीं था। He was not defined by the wealth and riches he had. और धन और संपत्ति जो उसके पास थे उसके द्वारा से वो कभी अपवित्र नहीं हुआ। But as he says in Psalm 27:4, लेकिन वो भजन संहिता 27:4, 27:4 में इस तरीके से कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। yes, see what David says. देखिए राजा दाऊद यहाँ पे क्या कहते हैं, One thing I have asked और of the Lord, और मैं यहोवा से एक वर मांगा है, and that will I seek, inquire of, and insistently require, that I may dwell in the house of the Lord in His presence all the days of my life. उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, To behold and gaze upon the beauty, the sweet attractiveness, and the delightful loveliness of the Lord, and to meditate, consider, and inquire in His temple. जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगा रहूं और उसके मंदिर में हर समय ध्यान किया करूं। That is why God said, David is a man after my own heart. और इसीलिए परमेश्वर दाऊद के विषय में कहते हैं, मेरे मन के लायक जन है। I don't want riches and wealth to boast. और मैं धन और संपत्ति अपनी बड़ाई के लिए नहीं चाहता। I want God to bless me, because I want people to see that I am blessed above all the people of the earth. मैं चाहता हूँ परमेश्वर मुझे इसलिए सब रीति से आशीषित करे कि लोग देख सकें कि मेरा परमेश्वर मुझे सब रीति से आशीषित कर देने वाला परमेश्वर है। The blessing and wealth of God gives me, and it should distinguish me from the world. और जो The blessing and wealth of God परमेश्वर का जो आशीष और God उसकी gives संपत्ति me है मुझे देता है, should distinguish me from the world, और संसार के सब चीजों से मुझे अलग बनाता है, उसमें जय देता है। because God's blessing is on my life. क्योंकि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर है, And God's blessing should set us apart from the people of the world. और परमेश्वर की आशीष मुझे संसार के लोगों से मुझे अलग भी बनाती है। They should know when you serve God, और वे जाने कि आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, how He will make you special in eyes of all the people. और संसार के अन्य लोगों के सामने कैसे वो आपको उत्तम और विशेष बनाता है। Your neighborhood will see and distinguish you because of the blessing upon your life. और आपके जीवन के आशीष के कारण आपके पड़ोसी देखेंगे और उनका ध्यान आप पर होगा। Let us see in Samuel, 2 Samuel verses 19 to 24, 19-24. और दूसरे सामुएल की पुस्तक उसमें हम देखेंगे, It's talking about Mephibosheth. 19. 19 अध्याय
verses 24. बाद में पढ़िए. और यहाँ पर मफीबोशेत के बारे में बताता है. Now Mephibosheth was living in a place called Lo-debar. और मफीबोशेत जो है एक स्थान में रहता था. It was a place of poverty. और वो गरीबी वाला स्थान था. But Mephibosheth knew the value of sitting in the presence of the king. और लेकिन मफीबोशेत जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में होने की महत्वता को जानता था. And because he had the same love for David as his father Jonathan, और जैसे योनाथन के प्रति उसका प्रेम था उसी प्रकार से उसके ऊपर भी दाऊद का प्रेम था. when David came to Jerusalem after he defeated his son Absalom, और अब्सलोम को हराने के बाद जब दाऊद यरूशलेम को आया, and Mephibosheth met him in 2 Samuel chapter 19 verses 27 and 30. और मफीबोशेत से वो मुलाकात करता है जिसे हम दूसरे सामुएल की पुस्तक 19 अध्याय के 27-28 पद में पाते हैं. हे मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु के राजा के सामने मेरी चुगली खाई है, परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाई वही कर. मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राणदंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है. मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? Yes, he knew the value of sitting with King David in his table. और वो राजा दाऊद के साथ उसके टेबल पर बैठ कर के खाने की महत्वता को जानता था. When David was in wilderness, when Absalom chased him, और जब दाऊद जंगलों में था यरूशलेम से सामना करते हुए, Mephibosheth was in sorrow. और मफीबोशेत जो है बहुत दुखित हुआ. But when David defeated Absalom and he came back to Jerusalem, he was rejoicing. और जब दाऊद ने उसको हरा दिया अब्सलोम को और यरूशलेम वापस लौट करके आता है, तो मफीबोशेत जो है बहुत आनंदित और खुश हो जाता है. We should know the value of sitting before the table of the king. और राजा के सम्मुख उसके मेज पर बैठने की महत्व को हमें समझने की जरूरत है. When we sit together in the Lord's table, और प्रभु के मेज में ब्यारी में हम जब एक साथ बैठते हैं, you are sitting before the King of Kings and the Lord of Lords. तब आप राजाओं के राजा और प्रभु के सम्मुख बैठते हैं. Don't come to the Lord's table as a ritual. और प्रभु के मेज में ब्यारी में आप एक रीति रिवाज के तरीके से न आए. But value His presence and believe what He has done for you by dying on the cross for you. परंतु उसकी उपस्थिति के महत्व को समझो और उस महत्व को भी समझे कि कलवरी के क्रूस पर उसने आपके लिए कैसे अनोखे कार्य को किए. You can take your enemy with you in the presence of the king. और अपने जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन्हें परमेश्वर के मेज में अपने साथ लेके आए. Your relationship with the king does not affect in spite of your enemy. आपके शत्रुता या किसी के साथ दुश्मनी के कारण से राजा के सम्मुख बैठना और आप उसमें राजा को कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई उसमें कोई खराब बात नहीं है. In Psalm 23:5 और भजन 23:5 में He prepares a table in the presence of your enemies. और आपके दुश्मन, आपके शत्रु के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाता है. Even if your enemy is with you, your relationship with the king will not affect the presence of your enemy. यहाँ तक कि जब आपके दुश्मन आपके साथ में, शत्रु साथ में है, उससे राजा के साथ आपके संबंध को कोई प्रभाव नहीं पड़ता. One night with the king एक रात राजा के साथ will change your life. आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा. His wall of protection is around you. और उसके सुरक्षा की दीवार आपके चारों ओर होंगे. That is what it says in Zechariah 2:5. Let us read Zechariah 2:5. इसीलिए जकरिया 2:5 में इस बात को लिखता है. For I say the Lord will be to her a wall of fire round about, and I will be the glory in the midst of her. और यहाँ लिखता है,
यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तजोमय होकर दिखाई दूंगा। Yes, he'll be a wall of fire all around you. और वो स्वयं ही आपके चारों ओर आग की सी सरपना बन जाएगा। I'll rather be in heaven और मैं स्वर्ग में रहूंगा than be on this earth. और उसी समय में इस पृथ्वी पर भी रहूंगा। नहीं, I'll rather be in heaven than be on the earth. और स्वर्ग से पृथ्वी से अच्छा है कि मैं स्वर्ग से अच्छा है कि पृथ्वी पर रहूंगा। Because when you are in heaven, you will always be in the presence of God. क्योंकि आप स्वर्ग में जब रहते हैं तो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। It is important that we will be on the earth to fulfill His mandate of bringing millions to Christ. और ये अच्छी बात है इस पृथ्वी पर रहना कि हम बहुतों को परमेश्वर के पास लेके आ जाएं। Jesus did not come to follow the traditions of the priest, that is the Sadducees and the Pharisees. और यीशु मसीह इस जगत में फरीसी सदूकी के उन रिवाजों रीतियों को करने के लिए नहीं आया। He spoke against the tradition of the time. और उस समय की जो भी परंपराएं थी उसके खिलाफ उसने बोला। They had a form of godliness but no power in their life. उनके अंदर भक्ति के रूप तो थे लेकिन सामर्थ्य नहीं थे। Let us turn to 2 Timothy आइए दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक को निकालेंगे verses chapter 3 और उसके तीसरे अध्याय and verses 5. और उसके 5वें पद में देखेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। 2 Timothy 3:5. और दूसरा तीमुथियुस 3:5 लिखता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। For although they hold a form of piety, true religion, they deny and reject and are strangers to the power of it. Their conduct belies the genuineness of their profession. Avoid all such people, turn away from them. और 6वें पद में, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों में दबी और हर प्रकार के विलासाओं के वश में हैं। Yes, we have to stay away from people who are billing in a form of religion. और हमें ऐसे लोगों से परे रहने की जरूरत है जो भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। Jesus did not come to form a religion. पर प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार के ऐसे धर्म के बारे में बात करने नहीं आए। He was against institutionalizing a new religion. और नए धर्म के किसी प्रकार के परंपरा या इंस्टीट्यूशन के बारे से वो दूर रहे। Jesus was a revolutionary. परंतु प्रभु यीशु मसीह एक प्रकाशन थे। No, if you look into the New Testament, he's always speaking about love. He spoke about a new commandment. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम नए नियम में जब हम देखते तो हर समय वो प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। Let us turn to Mark. आइए मरकुस की पुस्तक को निकालें। Mark chapter 12, 12वां अध्याय 12 and 30 and 31. और 30 और 31 पद को हम देखेंगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और यह दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। Yes, you shall love the Lord your God out of and with your whole heart and out of and with all your soul, your life and out of and with all your mind, your faculty of thoughts and your moral understanding and out of and with all your strength. This is the first and the principal commandment. The second is like it, and it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. और मरकुस 12:30-31 में लिखते हैं,
और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, जिससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। This is what he says in Matthew 22:37 and John 13:34 and 35. और don't agree. This is what he says in Matthew's, और ये बातें जो हैं मत्ती रचित सुसमाचार में भी and in John 13:34-35, और 13 अध्याय 33 और 34 पद यूहन्ना में भी, and he says love your enemies in Luke 6:27 and 28. Let us see. और लूक 6 अध्याय 27. 27 और 28 में हम देखेंगे। परंतु तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। But I say to you who are listening now to me, in order to heed, make a practice to love your enemies, treat well, do good, to act nobly towards those who detest you and pursue you with hatred. और यहाँ लूका 6:27 और 28 में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। And this is what he says in Romans 12 chapter. और यही बात रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं। Romans 12:20 and 21. 20 और 21 पद में, रोमियो 12 उसके 20 और 21 में हम देखते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। But if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him drink. For by so doing, you will heap burning coals upon his head. Do not let yourself be overcome by evil, but overcome, master evil with good. परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Yes, in religion only binds people in all kinds of bondage. और जो धर्म है वो लोगों को कई सब प्रकार के बंधनों में जकड़ के बांध के रखता है। In John 10:10 he says Jesus came to give life and life in abundance. और यूहन्ना 10:10 में इस तरीके से लिखता है कि यीशु आए जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। And secondly, to destroy the works of the devil. It is in 1 John 3:8. और पहला यूहन्ना 3:8 में लिखता है, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। And thirdly, in Acts 10:38. और प्रेरितों के काम 10:38. और 10:38 में लिखता है, God anointed Jesus to do good and heal all who are oppressed by the devil. और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, यीशु का अभिषेक किया शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए और लोगों को चंगा करने के लिए। Yes. And fourthly, और चौथी बात, the Son of Man did not come to be served, but to serve and give life. प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया। That is written in Matthew 20:28. और मत्ती 28 28. और 28 हो। And fifthly, और पांचवी बात, the Son of Man came to seek and save the lost. और मनुष्य का पुत्र खोइयों को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया। And in Luke 19:10, पढ़िए। और लूका 19:10 में लिखता है, लूका 19:10 हम देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोइयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। Yes. 19:10 says, 19:10 कहता है, for the Son of Man came to seek
and to save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोइयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। I have not come to call the righteous, और मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, but to save but sinners to repentance. और पापियों को बचाने के लिए ताकि वो उनके पश्चाताप के अनुसार। That is why we have to have fellowship with the Lord Jesus Christ. इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने की जरूरत है। That is the greatest value you can have in this world. और इस संसार में जो बहुमूल्य बात है वो यही है, To have an intimate relationship with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ आंतरिक रिश्ता और संबंध का होना। You should be the carrier of His presence. हमें उसके उपस्थिति को लेके चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। In Romans 12:1 it says, और Brethren, रोमियो 12:1 में लिखता है, give your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. और अपने शरीर को भावता हुआ पवित्र करके बलिदान करो जो ग्रहण योग्य है। Yes, your body should become Jesus' body. और हमारा जो शरीर है वो यीशु का शरीर होना चाहिए। And His presence should be your presence. और उसकी उपस्थिति हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। How can that happen? कैसे ये होगा? When you have fellowship with the Lord Jesus Christ. और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे सहभागिता या संगति होगी तब होगा। May God bless all of you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। If this message has been a blessing to you, यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बनता है, subscribe for this channel. और इस चैनल के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए हम आपके शुक्रगुजारी हैं। Let us come to an intimate relationship with you. होने दे पिता, आपके साथ एक अंतःकरण रिश्ते के अंदर हम आ सकें। We want to be a carrier of your presence. प्रभु हम आपकी उपस्थिति को लेके चलने वाले बने। Revolutionize our life this evening. इस आज की शाम हमारे अंदर प्रभु एक आंदोलन को आप दीजिए। Yes, let us be like Jesus, होने दे पिता, हम यीशु के समान हो जाएं, who was against the tradition of religion, but He came to give life and life in abundance. जो रीति रिवाज और परंपराओं के खिलाफ परंतु हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। When we have your life, जब आपका जीवन हमारे पास होगा प्रभु, we will be delivered from sickness, from poverty, हम गरीबी और बीमारियों से आजाद और छुटकारे में होंगे, and spiritual darkness. और सब प्रकार के आत्मिक अंधकार से हम छुटकारे में होंगे। Thank you for speaking to us. हमसे बातचीत करने के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।